Hello, namaste, welcome everyone. This is Charvi. Me and my co host Smriti welcome you all to our Pride Month special edition. Today, we are honored to be joined by two incredible women whose work speaks volumes about creativity, resilience, and social impact. So, our first guest is Falguni Joshi, the visionary founder of Karmar Crafts, a remarkable social enterprise empowering rural women and artisans. So, through skill development and product innovation, she is building sustainable livelihood opportunities. Joining her is Madhubala, the co founder of Karmar Crafts, a gifted graphic designer, video editor, and passionate storyteller. With a deep eye for the authentic and unfiltered, Madhubala captures the raw beauty of human stories through her lens, bringing voices from the margins to the forefront. Welcome, guys. थैंक यू सो मच. इतनी इज्जत हमने खुद को भी दे दी चारवी. Thank you for inviting us. थैंक यू. So, we would like to start first with our friend Falguni, because we know her since our YFI fellowship days. So, we would like to know about her story first. My story. So जब छोटे थे तो मुझे हमेशा लगता था दैट मैं सबसे अलग हूँ, लाइक आई एम वेरी डिफरेंट, आई डोंट फिट इन, ऐसा लगता था मुझे काफी. तो जब छोटी थी मैं तो जब हम लोग बास्केटबॉल खेलने जाते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स वगैरह जब भी होते थे, तो वहां पे मतलब लड़के भी आते थे, लड़कियां भी आती थी, और मेरे साथ में जो भी थे वो लड़का कितना क्यूट लग रहा है ना, कितना हैंडसम दिख रहा है, एंड आई वुड अग्री, ऑल्दो वो मुझे नहीं लगते थे, वो तात्या बिच्चू की तरह दिखते थे मेरे को. तो मैं ऐसे ही मतलब बोलती, हाँ मैं अग्री करती थी कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं. फिर कॉलेज के बाद आई वेंट टू यूके गई, तो वहां जाके पता चला, ओह ओके, दिस एग्जिस्ट, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी, क्योंकि इंडिया में नहीं सुना था तब तक. वहां गए तो वहां पे ओके रियलाइज हुआ कि अच्छा ये चीज है. देन आई स्टार्टेड बीइंग माई सेल्फ. बाय बीइंग माई सेल्फ आई मीन कि मैं I wasn't scared anymore. And I finally found a word for it. I finally found a definition of what I am, right? तो it felt like home. और मुझे ऐसा लगा यार, मैं एकदम ऐसे दरवाजा तोड़ के, वी कम इन आवर होम, वी टेक ऑफ आवर ब्रास, लाइक मैं तो घर आ गई, अब तो क्या कर लोगे तुम लोग. तो मुझे सच में ऐसा लगा that I have taken off my bra and I'm like happy here. And I came back to India in 2017, 2018. इधर आई मैं तो इधर तो भैया एकदम ही अलग ही माहौल, मतलब माहौल बदल गई, भावनाएं पलट गई. यहाँ तो अलग ही हो रखा है. यहाँ आके मैं क्रिमिनल हो गई, क्योंकि छोटी थी तब पता नहीं था मैं क्रिमिनल हूँ कि नहीं हूँ. यहाँ आई तो एकदम क्रिमिनल का ऐसे छाती ठोक के टैग लेके घूम रही थी मैं. बट अगेन आई वॉजंट आउट टू एवरीवन. But then after the Supreme Court verdict, I was so happy. I was on cloud nine कि okay, finally मैं criminal नहीं हूँ, but मैं I am not fully allowed to be myself, but you know, at least I won't be imprisoned. मैं सरकारी जेल में नहीं जाऊंगी, पर मैं घर के जेल में अभी भी जा सकती हूँ. Yeah. Just by existing, not even by doing exactly. But in both sense, being a woman and being a gay woman, both sense. Yeah, absolutely. And growing up in a very small town, orthodox, homophobic, Islamophobic, everything antonym of good. It was very difficult for me to get out of my shell and finally accept. And when I've accepted that was literally taking off my bra moment for me. So yeah, I love this analogy, and I guess I'm gonna use it everywhere now. That should be a t-shirt code, bra movement. Yeah. Something like that. Yeah. So yeah, I think that is how I like evolved as a woman and as a gay woman and as a human. And over the years, via my work, I have tried my best to spread an awareness about literally anything and everything: women's rights, sexual rights, LGBTQI rights, men's rights, everything, not excluding based on the gender. But yeah, I did my best, and I'm still trying to do my best. Yeah, it was a good journey. Pretty traumatic, but yeah, it was a good journey.
it's still a good journey, I would say. Madhubala, what about you? How was your journey and how was your childhood? So, of course, the journey was not easy. It was literally a roller coaster ride. Like, so I had my first crush when I was in sixth standard, Mm-hmm. and बहुत weird feeling थी. Like, obviously, it was a good feeling. Like, crush तो अच्छी feeling होती ही है, but वो साथ साथ weird था कि why on a girl? कि why I'm like feeling happy and excited to see her. और तो बचपन से दो ही जेंडर्स पता था कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में कुछ टाइम में डेवलप हुआ ओके आई एम अ बॉय, शायद मुझे तभी लड़कियां पसंद आ रही हैं। तो एक टाइम ऐसा भी था इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कि आई यूज्ड टू क्राई, और मैं मंदिर में जाके बोलती थी कि नहीं प्लीज बाबा जी मुझे लड़का बना दो, जस्ट टू जस्टिफाई माई फीलिंग्स कि Yeah. बट मैं कभी अपनी बॉडी में अनकंफर्टेबल नहीं रही। आई वॉज ऑलवेज कंफर्टेबल बीइंग अ वुमन, बट कुछ आसपास कोई था ही नहीं कि आप किसी को देख के फिगर आउट करो, या आप टीवी पे भी ऐसा कुछ आता नहीं था क्योंकि उस टाइम तो इंटरनेट तो था ही नहीं। टीवी आता था कार्टून्स में क्या होगा, और आसपास तो ऑब्वियसली, और फैमिली में भी कभी कभी किसी को नहीं देखा या कभी कोई बात भी नहीं सुनी ऐसी। तो कहीं से कुछ अवेयरनेस नहीं, तो कुछ समझ नहीं आता था। बट कुछ टाइम बाद जब कॉलेज गए फिर धीरे धीरे तब थोड़ा इंटरनेट का एक्सपोजर भी स्टार्ट हुआ, और तब पता लगने लग गया कि ओके ऐसे एलजीबीटी कम्युनिटी भी है। तो मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया, एंड उसने मेरे से 2 महीना बात नहीं करी, जस्ट लाइक दैट। उसने मुझे कुछ नहीं बोला, बस वो इतना शॉक में चली गई कि उसने 2 महीना बात ही नहीं करी। एंड देन कुछ टाइम बाद आई स्टार्टेड सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली। तो मैंने अपने ब्रदर को बताया, एंड उसने सिर्फ सुना। ही वॉज ऑल्सो कंफ्यूज, बट उसने कभी बोला नहीं कि ओके व्हाट इज दिस, ऐसा कि नहीं होता है हमारी खानदान में और ऐसा कुछ नहीं। और उसने बस बोला ओके ट्राई टू फिगर आउट कि करो। एंड yes, and like many years, like 4 to 5 years later, I told my parents also. So abhi they know, but Okay. obviously they are not ready to accept anything. Yeah. But and they don't want to talk about it. एक बार बहुत बड़ा ड्रामा हो चुका है मतलब हमने कम से कम 5-6 महीना सही से बात नहीं करी थी, मी एंड माई पेरेंट्स। बट बचपन से ही मैं उसी एनवायरनमेंट में रही हूँ कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ। तो मैंने बचपन से ही हम साथ साथ वाली फैमिली देखी है, तो मेरे माइंड में ना कभी ये आया नहीं कि नहीं मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए। व्हाट आई फील कि बहुत शांति से, ठीक है अवॉइड कर रहे हैं टॉपिक, बट मैं बीच बीच में ले आती हूँ टॉपिक समहाउ अपने फ्रेंड्स की, मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा किया, या आई हैव दिस फ्रेंड वो अपने पेरेंट्स को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने गई है, और ये वो ऐसे में एग्जांपल्स ले आती हूँ बीच में, Pepper it around. या मूड ऑफ करते, बिकॉज आई वांट कि यार बचपन से जो देखा है मैंने, बचपन से हर एक बात अपने पेरेंट्स को बताई, मैंने कभी अपनी फैमिली से कुछ नहीं छुपाया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई विल टेल देम कि भाई मैं गलत नहीं हूँ और ये बात है, अब आप देख लो क्या करना, क्योंकि रहना तो आफ्टर ऑल मतलब पेरेंट्स के बिना आई डोंट थिंक सो Yeah, रह absolutely. सकती हूँ, या मतलब सबका अपना पर्सपेक्टिव है। मेरे हिसाब से मैं Yeah. पेरेंट्स के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हो। तो यस आई एम वेटिंग, दे आई थिंक दे आर ट्राइंग, बट बहुत स्लोली. And I guess it's very different for us in like, because we are in the South Asian community and Yeah. Indian community, even though like the law passed, but I don't think that really made a difference per se. And this classic trope of Indian South Asian parents to like, avoid things that make them uncomfortable. So that like just push things under the rug and don't talk about it, like something as simple as they don't even apologize for like so many things that have been said and done. तो ये सारी बातें तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, but like like you said,
very rightly so, Madhubala, that the perspective is very different from person to person, family to family. And like, And coming out to your family is in itself a huge struggle, in addition to like, the struggles that you must have gone through yourself as a child. I mean, I cannot even imagine, because like heterosexual people, I guess, have that advantage ki like, आसपास पूरा दुनिया जमाना like, हमारे तरह ही है. So you have like a map to map yourself on. And questioning, like, while I was listening to you, I was just thinking about it, like, where you're questioning yourself like in so many different tangents. It's really, really overwhelming for a child, let alone a woman. yeah, I just want to add कि प्रॉब्लम अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने में नहीं है, प्रॉब्लम है कि सोसाइटी हमें कैसे एक्सेप्ट करेगी जब हम अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगे. Yes, दिस इज द मेन रीजन. ये मुझे बहुत क्लियरली बोला गया कि हम तो कर लेंगे पर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. हम रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? Yeah. So also because like India is still in that period and in that phase where we're so intertwined with caste system still, like things like that उसी में like अगर लव मैरिज है तो मतलब रिश्तेदारों को नहीं बोलना है कि लव मैरिज है, बिकॉज दैट विल बी अ बिग ठेस कि ऐसे कैसे लड़की ने अपना इंसान चुन लिया. इट गोज in the same line of thought. So yeah, Falguni, what about you? How was your story with your family? Growing up, I didn't have a single person to talk to. We are 4 siblings. I'm the third one. Yeah. तो हम चारों में इतना एज गैप है कि मैं कभी वो कंफर्ट ढूंढ ही नहीं पाई जो एक भाई बहनों में होता है. अभी भी वी आर ट्राइंग. आई मीन वी हैव आवर ओन थिंग, बट वी लाइक वी स्टिल ट्राइंग. बट कभी वैसा कंफर्ट मुझे घर में लगा नहीं. आई वाजंट सेफ एट होम एट ऑल. एंड देयर वाज ऑलवेज दिस ट्रस्ट इशू कि मैं किसको बोलूं. देयर वर डेज वेयर आई वुड लाइक लिटरली क्राई माई सेल्फ टू स्लीप. सुबह उठ के मुझे रोना आता था, मैं उठी क्यों. आई थिंक आई स्पोक अबाउट, और रादर आई केम आउट टू माई मदर when I was 28, 29ish. So imagine, since I was a kid to 29, I had nobody to talk to, but I had my friends that I would tell them that this is who I am, but I would not share my story with them. So basically, it was around the same time when it was decriminalized. That's when yes, exactly. So thank you for pointing out my this thing. बूढ़ी हो गई हुए थे फेलोशिप वाला टाइम तुम यार. So yeah, so I was 28, 29. और उस वक्त ना ऐसे तो मुझे मम्मी हमेशा बोलती थी कि बिट्टू शादी कर ले, रिश्ते आ रहे हैं, ये आ रहे वो आ रहे. तो मैं हमेशा ऐसे टालती थी. आईएएस ऑफिसर ले आओ, मैं आज शादी कर लूँ उससे. तो मम्मी वाज लाइक तुम्हारे लक्षण तो है नहीं आईएएस ऑफिसर वाले, पर फिर भी ढूंढ लेंगे. माय मदर वाज लाइक तुझे कुछ पसंद है तो बता दे. एंड आई वाज लाइक नहीं मम्मी, मुझे इस जन्म में कोई आदमी पसंद नहीं आएगा. तो बोलती है कि क्यों, इज इट बिकॉज ऑफ द अब्यूज. एंड आई वाज एसेड for 12 years of my life when I was a kid. So my mother knows about this, and she was like, okay, is it because of that? And I said, नहीं, मुझे आदमी जाति नहीं पसंद, मुझे घिन आती है उनसे. तो she asked like ऐसा क्यों है. मैं बोला I don't know, मे बी मुझे लड़कियां पसंद है. तो my mother was like तुझे पसंद है वो. मैंने बोला हाँ पसंद है. And then my mother was like कि पर शादी तो करनी पड़ेगी. मैंने बोला कि तो आप लड़की ढूंढ के ले आओ, मैं अभी नेक्स्ट सेकेंड आई मैरी दैट पर्सन. ठीक है, मैं लड़की ढूंढ के ले आऊंगी. मैं ना यूके जाऊंगी ना, तो मेरी एक सहेली है वहां पे, मैं उनसे बात करूंगी, तो मुझे बायोडेटा बना के दे और मैं ना ये उनसे बात करूंगी, मैं ढूंढ के ले आऊंगी. अच्छा How ठीक है sweet. है ना. I माय know मदर that's इज अ really गॉडेस, शी इज अ गॉडेस.
That reminds me, so 2 years back हम अपने घर गए थे छठ पूजा में, और मेरी माय मदर इज आफ्टर माय लाइफ की शादी शादी, अब तो शादी कर लेना चाहिए तुमको एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर एंड माय बेस्ट फ्रेंड चेतना, शी इज गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई 2 साल पहले। तो मेरे को माँ कहती है कि तुम और चेतना को एक्चुअली शादी कर लेना चाहिए था। तो मेरे को माँ को बोले मतलब, बोले तुम लोग को एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता है, यू बोथ शुड हैव गॉटन मैरिड। तो हम वैसे ही जस्ट टू चेक कर, हम वैसे ही पूछे माँ से कि आपको क्या लगता है कि अगर अगर हम शादी सही में, अगर हमको सच में लड़कियां पसंद होती तो आप करवा देते शादी? तो बोली हाँ करवा देते। आई वाज लाइक व्हाट, और वही मेरी माँ से बैठी थी एंड शी वाज लाइक क्या है ऐसे थोड़ी होता है, शी वाज लाइक नॉट ओके विद इट, एंड मेरी माँ हाँ करवा देते। तुम जिसमें मतलब, आई फेल लाइक शी गॉट सो डेस्परेट विथ मी गेटिंग मैरिड, शी वाज लाइक तुमको जिसके साथ खुशी मिले तुम उसके साथ रहो, बट हम पक्का करवा देते हैं। एंड आई वाज लाइक ये, आई फील सो गुड। Yeah. That's sweet. कर लेते यार, मौका था। है ना? That also brings me to this whole point where like girls who are heterosexual, we more often than not are really frustrated with men, right? So बहुत बार ये ख्याल आता है कि I really wish I liked girls, like had that option, because I have amazing women around me. So sometimes when people put it across like that, people of the community get offended. So what do you think about it? Is it something that you think should be taken offense for, or is it okay for people who are not part of the community to say that? I would take an offense because we are not a fucking option for anyone. Yeah, we are not an option, honey. You're just not that lucky. I love it. You're just not that lucky. Yeah. My condolences, but yeah. Deal with it. Yes. So that is something that I keep seeing, like, people talk about very बहुत lightly बात करते हैं इस चीजों के बारे में, and in this context, because like these are the little things that like actually hit people, which people don't really understand कि अच्छा हाँ ऐसे भी हो सकता है, ये पर्सपेक्टिव भी हो सकती है. That brings me to the part where like there is this whole misconception like concerning the community, different like types of people, the different tags that are put. So what do you think about that? Like how do you take that when such things happen around you and there are people who talk about things in a manner which doesn't sit right with you? What are the important, like the common myths and stereotypes? Basically, that also I would want to know. That is very common for maybe a lesbian couple or the community in general. I think people who say that ओ मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं ये करती, अनफॉर्चुनेटली मैं स्ट्रेट हूँ, मैं आई कैन नॉट एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम नॉट इवन बाय क्यूरियस एंड ऑल ऑफ दैट, नॉट इवन क्यूरियस, मैंने कभी किया ही. They think that it is a choice, being lesbian, gay, bisexual, whatever. They think that it is a choice, number one. Number two, they think that it is easy for us because they haven't walked in our shoes. They haven't had to suppress themselves. They did not have to live two lives. They did not have to live in fear of your own family. They did not have to live in fear of the society. They did not have friends leaving them and not talking to them for months and years and ages. They did not go through that, and they will never go through that, and they will never experience that. That is why it is easy for people to say, oh kash main ye hoti and all of that. It's honey, it's not easy. We know our struggles. People from the community who are leaders now, we have seen their struggles, we know their struggles, and we relate to it at certain level. So another question that I had was how is it different now? Like, now that you have had all of these
experiences, and you've had finished school and college and university and everything. How is it different now for you, now that you're part of the Indian society, and the law is different now? How do people perceive you now, and how is your environment different now? Yeah, of course, laws change हुआ है, हमारे benefit के लिए हुआ है. बट अब जैसे वी स्टार्टेड वर्किंग, हमारा इंटरेक्शन बड़ा है लोगों के साथ. लाइक अब larger amount of people we interact like on a daily basis. It's all about acceptance. आप समझ गए हो कि who you are, ठीक है, और अगर आप एक्सेप्ट कर लिए तो आप वैसे ही रहोगे. इट इज लाइक इट विल बिकम अ नॉर्मल थिंग. मतलब जो आप हो आप वैसे ही रहोगे. एंड जब मैंने ज्वाइन किया फुल टाइम जॉब में, पहले फैमिली बिजनेस में ही थी, फिर सब प्रॉब्लम हुई व्हेन आई केम आउट एंड ऑल, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक वर्किंग फुल टाइम. लाइक कभी मैंने सोचा नहीं था मैं कॉर्पोरेट जॉब में जाऊंगी, बट आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप एट द एज ऑफ 27. तो तब मैंने इंटर्नशिप शुरू किया था, एंड लकीली मुझे बहुत अच्छा वर्क कल्चर मिला, ठीक है. मतलब जहाँ पर मैं ओपनली बता सकती थी, या ओपनली जैसे मैं हूँ मैं वैसे रह सकती थी. मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. एंड मैं बताती थी, या अगर कोई पूछता था कि ओके और आर यू सीइंग समवन और सब, या आई यूज्ड टू टेल या आई हैव अ गर्लफ्रेंड. 10-20 सेकंड का थोड़ा होता था फेशियल की, ओह कुछ कुछ तो ऐसे, ओह सो कूल. तो ये ओ सो कूल में करने को भी मिला कि पता नहीं क्या ऐसे मैं बहुत अलग चीज कर रही हूँ. तो या मिक्स्ड रिएक्शन भी है, बट हमेशा एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट ही मिला मुझे, लाइक फ्रॉम सीनियर्स टू जूनियर्स. मतलब सबसे पीपल आर स्केयर्ड टू कम आउट, बिकॉज उनको ये लगता है कि सिर्फ मेरी सेक्सुअलिटी की वजह से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए. मैं मेहनत करूं और मुझे अच्छा एप्रिसिएशन ना मिले, या उस हिसाब से मुझे मतलब अप्रेजल ना मिले, या कुछ भी हो सकता है. Absolutely. I guess it becomes a safe space, because अगर बहुत सारे लोग हैं जिनके दूसरे safe spaces नहीं होती है, चाहे वो friendships हो या family हो, so then like your work, because it is something that is a very large part of your life. So then that if that becomes a safe space, then that helps a lot, I feel. And it gave me confidence कि मुझे इवन अपनी फैमिली से भी बात करने का या उन्हें फेस करने का भी कॉन्फिडेंस मुझे कहीं ना कहीं मिला, कि मैं एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली को बता सकती हूँ, देखो बाहर के लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं. आपको सोसाइटी की चिंता थी, मुझे सोसाइटी में मैं जा रही हूँ. मैं जी रही हूँ वहां पे जो मैं हूँ वैसे. तो आपका एक्सेप्टेंस जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउ दैट इज पेंडिंग. बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है. तो Absolutely. Yeah. Falguni, you have anything to add? Honestly speaking, मेरा corporate culture में कभी इतना experience नहीं रहा है, because ever since I think it's been 10 years now, I've always worked in the development sector. It started with law school, because in the UK it was mandatory कि तुमको social service करना पड़ेगा. So my interest sort of grew back then. तो मैंने तब से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है जहाँ पे देयर इज openness, acceptance, and respect for everyone, not just the community or women or men or anything, everybody. But there was a time when I unfortunately worked for an MNC. I was 31, 32ish at that time. तो तब बोल ऐसे रही है जैसे मैं 40 की हो गई. I'm just 35. I don't know why you've been. तब से मैं यही सोच रही हूँ, just a millennial. है ना, मुझे अभी रियलाइज हुआ. तो I guess brain wise हम इतने बड़े हो गए हैं.
तब मैंने, and I was with like young kids who have just passed out from their masters or their bachelors or whatever, और एकदम से उन्होंने आके काम करना स्टार्ट किया है in their early 20s and whatnot. तो I would say like, okay, yeah, this is who I am. तो oh my god, so cool bro. तो तुम लोग सेक्स कैसे करते हो? अरे तुमको क्या करना? And that was like my one and only introduction to the corporate world. बॉस आके क्वेश्चन करेगा एंड देयर इज लाइक क्लियर डिस्क्रिमिनेशन कि नहीं ये काम आपसे नहीं होगा, ये आप किसी और से और को करने दो. अरे क्यों भाई, क्यों? मैं, मेरे क्या कुछ ब्रेन सेल्स कम हो रहे हैं क्या अगर मैं ये हूं तो? क्या हो रहा है? मतलब अलग ही मेरी क्या उंगलियां कट रही है उससे कि मैं टाइप नहीं कर सकती या क्या? तो I mean, sure, like there have been people out there who have been, you know, there are understanding people out there, but there are some चमन चूतिए एसहोल, एकदम गधे बेवकूफ दिमाग से पैदल, जिनका दिमाग घुटनों में भी नहीं है, कहीं और ही हवा में फैला रहा, वो अभी तक ढूंढ रहे. वैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं. When I worked with the organization, the development organizations, people have been, even गांव के लोग भी have been so understanding कि अच्छा आपको हमारे गांव से कोई पसंद है. बट यहाँ लोगों को अभी तक यही जानना होता है कि हम सेक्स कैसे कर रहे हैं. I know, right? And it's so surprising, like, you know, people like, you know, your mother and people Yeah. whom you wouldn't ever think कि actually understanding हो सकते हैं. Because Yeah. of our assumptions and presumptions, they Yes. turn out to be so much more understanding Yeah. and helpful in Yeah. comparison to these apparent educated हमारे Yeah. generation वाले लोग. Yeah. See, there's a difference between education and literacy, right? Yeah, absolutely. So yeah, so I would rather say that they're just literate, not educated. Like, you know, another question that really popped up while we were having this conversation is that after 2018 and after everything was legalized, how do you think things have changed for you, like being in India and being part of the community? Has like the law really made a difference? क्योंकि पेपर पे तो है ही and सबको पता भी है, but like in real life, in your मतलब निजी जिंदगी में, what are the changes that you see? Do you really see, like, you know, the government really helping, the judiciary really helping on a day-to-day basis, or is it something else, like, you know, which might have had a ripple effect? So I think government, obviously laws change होना या हमारे फेवर में कुछ भी आना बहुत बड़ी बात है. एंड थैंक्स टू ऑल द एक्टिविस्ट LGBTQ कम्युनिटी जो स्टार्टिंग से फाइट करते आ रहे हैं इस चीज को लेकर लीगल करवाने के लिए. एंड आई होप आगे जाकर मैरिज राइट्स मिले और सारे राइट्स जो हम डिजर्व करते हैं, जो कि बेसिक राइट्स है हर एक ह्यूमन बीइंग के, वो हमें मिलने चाहिए. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जो सबसे बड़ा चेंज लाया है वो सोशल मीडिया लाया. नाउ पीपल हैव अ प्लेटफॉर्म कि वो खुल के बता सकते हैं अपनी स्टोरीज, अपने स्ट्रगल्स. एंड कितने गे कपल, कितने लेस्बियन कपल, लाइक LGBTQI+ कम्युनिटी से कितने कपल्स हो गए या कोई इंडिविजुअल लोग भी अब अपनी स्टोरीज बता रहे हैं. अब वो अपना जो वो लाइफस्टाइल और वो डिजर्व करते हैं वो उन्होंने स्टार्ट करा है जीना. एंड आई थिंक उनके लिए भी बेनिफिशियल रहा है. सोशल मीडिया में लोग उनको पहचानते हैं एंड साथ साथ दे कैन अर्न. और अगर पैसा है तो फैमिली भी कईयों की एक्सेप्ट कर चुकी है अभी तक. बहुत लोग अवेयर हो रहे हैं. आई हैव सीन लाइक कितने फैमिलीज हैं, कितने हेटेरोसेक्सुअल कपल्स हैं जो कितने होमोसेक्सुअल कपल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज फॉलो कर रहे हैं. इवन उनको अच्छे कमेंट्स आते हैं. वो ये सब देख के हम लोगों के मन में भी होप आता है कि ओके, वन डे में भी हम भी इतना ओपनली रह सकते हैं, या हमारी फैमिली भी ऐसे एक्सेप्ट कर लेगी जैसे वो लोग अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं. they got married also. I know it is not legal, but for their satisfaction they did that. एंड यहाँ पे नहीं, बट फॉरेन में कितने कपल्स है जिन्होंने मतलब बेबीज भी उनके एडॉप्शन उन्होंने किया है. कितने इंडियन कपल्स हैं जो
फॉरेन इसीलिए सेटल हुए कि उनको एडॉप्शन करने को मिले. Yeah. So, and I think सोशल मीडिया के साथ साथ बॉलीवुड इज ऑल्सो चेंजिंग. कुछ समझदार लोग आए हैं बॉलीवुड में जिन्होंने मूवीज थोड़ी बेटर करी हैं, कि रिप्रेजेंटेशन बेटर किया है LGBTQI कम्युनिटी का. एंड पहले आपको पता है कि गे कैरेक्टर्स को जस्ट कि अगर कुछ फनी नहीं है तो किसी को गे बना दो मूवी में और गे जोक्स मार दो उस पे, या हीरो को वो हल्का सा टच करे और हीरो उसको बोले अरे, without realizing that it is derogatory. They've been doing it like since years. Yeah, it's a trope. exactly. और इवन जितना भी लेस्बियन कपल्स या women liking women वाला कॉन्सेप्ट दिखाया है, क्यों उनको एक तो पूरा ऐसे छोटे कपड़े पहना के अपनी मेल ऑडियंस के उनके लिए ये सब कंटेंट बनाया गया, एक विमेन को ऐसे पोर्ट्रे किया गया, लाइक तो ऑब्जेक्टिफाई किया गया, आपने विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया, अभी भी चलता आ रहा है वो. True. बट रिप्रेजेंटेशन कभी भी सही नहीं गया. सही नहीं रहा. Correct. So that reminds me, somebody asked me to ask this question to you. Exactly this question. That why, gays are shown in a certain way in Bollywood movies, but with lesbians it's difficult. So I think that itself is the answer, that औरतों के केस में तो आप मेल गेज ही लेने की कोशिश कर रहे हो, but in case of when you are representing gay men, you are trying to just make it comic. If सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट कि औरत की भी एक सेक्सुअल प्रेफरेंस होती है, बेशक वो हेटेरोसेक्सुअल हो, कोई भी हो. कोई औरत सेक्स के बारे में बात कर ले, अपनी नीड्स के बारे में बात कर ले, ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो बात कर ही नहीं सकते, पाप चढ़ेगा तुम्हें. इवन मेन ने भी स्टार्ट किया समझना. उन्होंने प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया वुमेन की नीड को. मतलब काफी कुछ चेंज हो रहा है. मैं ये भी नहीं कहूंगी कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है. सोसाइटी बिल्कुल वैसी स्टैग्नेंट है, कांस्टेंट है. नो, लोग समझ रहे हैं, फिट इन होना स्टार्ट हो गए हैं लोग, बट जर्नी बहुत लंबी है अभी. True. That's a wrap for now, but we're not done yet. The next Pride edition is bringing more on safe spaces, queer icons, and pop culture that moves us all. For now, this is Charvi and Smriti signing off. Until next time.